Hello dear students. Last lecture we have discussed about classification and methods of preparation of halogens. लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था हेलोरेंस के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेंस। सिंस स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ reactions in which halogens takes part. That is, halogens takes part in two types of reaction. First one is nucleophilic substitution reactions and second type is electrophilic substitution reactions. Among these two reactions, aryl halides or haloarenes are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reactions. This is because of four reasons. First reason is resonance effect. We have discussed first reason, resonance effect, due to which haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Since students, in haloarenes, halogen atom possesses 3 lone pair electrons on it. These lone pair electrons are in conjugation with pi electrons of benzene ring. मतलब जो हैलोजन होता है, हैलोजन के ऊपर के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में कॉन्जुगेशन में होते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन नीचे डीलोकलाइज होते हैं और ये जो क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, उसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दैट मीन्स दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स गिव्स partial double bond character to CCl bond. Hence we know that we need more energy to break double bond than single bond. Hence this CX bond or CCl bond not easily break, and that's why these haloarenes does not easily take part in nucleophilic substitution reactions. समझ में आया बच्चों? तो क्या होता है कि जो हैलोअरेंस होते हैं उसमें ये जो हैलोजन अटैच होता है बेंजीन रिंग को, उसके वजह से क्या होता है कि उसके लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होने की वजह से, ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन, दिस हैलोजन एटम गिव्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू CX bond, that is CCl bond. Here I write example of chlorobenzene. Okay, this is first reason. Due to resonance effect, there is partial double bond character to CX bond. Second reason given is difference in hybridization of CX bond. तो देखिए बच्चों, जो CX bond होता है हेलो अल्केन में और हेलोअरेंस में, उसमें क्या डिफरेंस होता है हमको पता है। हेलो अल्केन्स में जो हैलोजन होता है वो सिंगली बॉन्डेड होता है, सिंगली बॉन्डेड होता है। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है वो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और हेलोअरेंस में हम हैलोजन आइटम किसको अटैच करते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच करते हैं। तो सिंपली देखिए, जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो उसका जो परसेंटेज कैरेक्टर होगा वो होगा 25%, और जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसका परसेंटेज कैरेक्टर होता है 33%। मतलब जब यस कैरेक्टर ज़्यादा होता है कार्बन आइटम का तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मतलब अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो ये जो बॉन्ड है इसको, इस शेयर पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा, मतलब इस हैलोजन को इजीली बाहर नहीं निकलने देगा। इसके वजह से हैलोअरेंस की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वी नो दैट व्हाट हैपन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. Since in nucleophilic substitution reactions, halogen atom is replaced by another nucleophile. By attacking on this R group, this X group is replaced, and we get another new molecule R single bond nucleophile plus this X minus is removed by this nucleophile. Okay, but in that case, haloarenes has, in haloarenes, halogen is bonded to sp2 hybridized carbon atom. This sp2 hybridized carbon atom is more electronegative, hence it does not donates or does not replace this halogen easily because it has more electronegativity. Hence haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Here I write down some explanation. देखिए मैंने जो बताया अभी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम का इस कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है 33%, तो उसकी वजह से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है। तो वो इजीली ये जो CX बॉन्ड पेयर है उसको टाइटली पकड़ के रखता है और वो CX बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता इन केस ऑफ हैलोअरेंस, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता और इसको रिप्लेस नहीं कर सकता।
और जो हेलो अल्केन्स होता है उसमें ये जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का अटैच होता है, जिसका एस कैरेक्टर होता है अबाउट 25%. इट इज़ लेस रिएक्टिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, hence it is easily remove this halogen atom and attack of nucleophile will be possible, OH minus or any other nucleophile, amine or Cn minus or Nc minus. Okay, we have discussed about nucleophilic substitution reactions in alkyl halide. There are total 9 substitution reactions of haloalkanes or alkyl halides in this chapter. We have already discussed about that. Now another factor, due to this hybridization S character, the bond length in CX bond length in haloalkane is 177 picometer and CX bond length in haloarenes is 169 picometer. ओके, जो हेलोअल्केन्स होते हैं उसमें CX बॉन्ड लेंथ जो होती है, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हेलोअल्केन में कितना होता है 177 पिकोमीटर होता है, और हेलोअरेंस में कितना होता है वो 169 पिकोमीटर होता है. तो मतलब अपने को सीधा साधा पता है कि जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. तो हेलोअरेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ कम है, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो वो बॉन्ड इजीली क्या होगा, ब्रेक नहीं कर सकते अपन, और ब्रेक नहीं कर सकते तो इजीली यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा. तो ये हो गया सेकंड फैक्टर. Here I write down this, since less the bond length, more is the bond strength, hence haloarenes less reactive than haloalkanes. Okay, now third factor is less stability of phenylcation. Since we have discussed about SN1 mechanism, what happen in SN1 mechanism? SN1 mechanism में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में सेल्फ आयोनाइजेशन होता है टर्शरी अल्किल हैलाइड का या फिर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है और कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. वैसे ही अगर फिनिल कटायन के बारे में, अगर अरिल हैलाइड के बारे में सोचेंगे आप, अगर सेल्फ आयोनाइजेशन होगा अरिल हैलाइड का तो क्या तैयार होगा, फिनिल कटायन फॉर्म होगा और X माइनस बाहर निकल जाएगा. तो ये जो फिनिल कटायन फॉर्म होता है उसका स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकता, फिर पाई इलेक्ट्रॉन भी उसमें प्रेजेंट है मगर फिर भी उसका सेल्फ स्टेबलाइजेशन नहीं वो कर सकता रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई करके. इसके वजह से वो जो फिनिल कटायन है वो अनस्टेबल का अनस्टेबल ही रहता है, उसको स्टेबल नहीं कर सकते अपन बाय यूजिंग रेजोनेंस इफेक्ट. ये है तीसरा फैक्टर. इसके वजह से ये जो हेलोअरेंस है वो SN1 मैकेनिज्म वाइज भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. फोर्थ रीज़न है, वी नो दैट इट इज़ अ वेरी सिंपल रीज़न. वी नो दैट हेलोअरेंस आर आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू प्लसर इफेक्ट एंड हेलोअरेंस आर मोर electron rich, and nucleophiles are also electron rich. Nucleophiles are electron rich centers. Okay, so there is repulsion between electron rich nucleophile and electron rich haloarenes, hence there is repulsion between nucleophile and haloarene ring, hence haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. These are total 4 factors which are responsible for less reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions. But under certain conditions of temperature and pressure, these haloarenes undergo nucleophilic substitution reactions easily. मतलब क्या है इसका, अगर अपन स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, सर्टन टेम्परेचर और प्रेशर अगर अप्लाई करके अपन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करते हैं हेलोअरेंस में, तो ये रिएक्शन होती है, एक्सेप्शन है. मतलब जैसे कि अभी हमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाले. क्लोरोबेंजीन का, अगर क्लोरोबेंजीन को अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दैट मीन्स हियर आई टेक टेम्परेचर 623 Kelvin and 3 atmospheric pressure, then we get phenol. Here replacement of this Cl group takes place by OH minus ion in sodium hydroxide to give phenol. Here we apply certain conditions of temperature and pressure. Here about 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure apply, hence this nucleophilic attack takes place and we get phenol from chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तैयार होता है, मगर ये जो कुछ कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर की वो अप्लाई करनी पड़ती है. इसके अलावा ये कंडीशन अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और होगी तो भी हमको ये प्रोडक्ट एकदम कम अमाउंट में मिलेगा, जो प्रोडक्ट यील्ड होगा वो एकदम कम होगा. ठीक है, मगर अगर हमको ये कंडीशंस भी कम करनी है, मतलब टेम्परेचर भी कम अप्लाई करना है और प्रेशर भी कम अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी
कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि देखिए द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशंस ऑफ हेलोरिन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरिन्स। मतलब जब ये जो हेलोरिन है उसके ऑर्थो पोजिशन या फिर पैरा पोजिशन या फिर दोनों पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच करेंगे तो क्या होता है कि ये हेलोरिन की रिएक्टिविटी बढ़ती है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गई आपकी ऑर्थो पोजिशन और ये हो गई आपकी पैरा पोजिशन और ये ऑर्थो पोजिशन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अगर अटैच होगा तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोरिन की, उसकी होने की संभावना बढ़ती है। तो अभी हम वो जो एग्जांपल है उसके बारे में देखेंगे। सिंस हियर व्हेन दिस when nitro group is substituted at para position of chlorine, then its substitution reaction takes place, its hydrolysis reaction takes place to give phenol. That is, when nitro group is attached at para position of chlorobenzene, then here we apply temperature only 443 Kelvin. In last reaction, when there is no electron withdrawing group present on chlorobenzene ring, then there we apply temperature about 623 Kelvin and also pressure 300 atmospheric pressure. Okay, but here due to presence of this nitro group or electron withdrawing group at para position, only 443 Kelvin temperature will be applied and we get phenol from chlorobenzene, that is nitro substituted phenol from nitro substituted chlorobenzene. Okay, here this nitro group is substituted at para position of chlorobenzene. Now since second example, here two nitro groups are substituted at ortho position as well as at para position. Here temperature again decrease 368 Kelvin due to presence of these two electron withdrawing groups. Okay, here due to these two electron withdrawing groups, this reaction speed again enhance to give this phenol product, that is 2,4-dinitrophenol. Okay, here we get 4-nitrophenol. Now third reaction, if we substitute or if we take trinitrochlorobenzene, then here when this trinitrochlorobenzene when treated with warm water only, then we get trinitrophenol. Since when we take mono substituted chlorobenzene, then we apply temperature 443 Kelvin and this nucleophilic attack takes place to give phenol. When we apply 360 Kelvin temperature to dinitro-chlorobenzene, then we get dinitrophenol. Here temperature decreases. Since here we apply 443 Kelvin temperature, here we apply 368 Kelvin temperature, and in next example here we apply no temperature. Here no heating is required, no pressure will be applied, but due to presence of these three nitro groups at ortho and para positions, the reactivity towards nucleophilic attack will be increased. Here we take only warm water, not NaOH or KOH, and easily this substitution reaction takes place. OH minus ion from water attacks on this chlorobenzene molecule and replaces this chlorine by OH minus ion, and we get trinitrophenol or picric acid. Okay, since why, मतलब इसका मतलब क्या होगा अभी कि जब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब ऑर्थो पैरा पोजिशन पर है तभी रिएक्टिविटी का क्यों बढ़ रही है, तो उसका रीज़न होता है जो रेजोनेंस इफेक्ट हमने देखा पिछले पेज पे। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं क्लोरोबेंजीन के, जब ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। अगर वो क्लोरीन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ती है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बढ़ती है। ओके, लास्ट पेज, सॉरी। सिंस हियर ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेस। ओके, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज आता है तो वो जो कार्बेनियन फॉर्म होता है वो कार्बेनियन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तैयार होता है। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अगर होगा, here we write down, here we substitute nitro group at para position of chlorobenzene in first example. Here we substitute nitro group at ortho and para positions of chlorobenzene, and here we take trinitrochlorobenzene, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूट किया हुआ है। तो क्या होगा,
इसका जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और वो जो कार्बेनियन फॉर्म होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, वो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसको स्टेबल कर देगा इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच के। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो निगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, वो न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH- वो इजीली इसको रिप्लेस कर सकता है। ओके, दैट्स वाई व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, रिएक्टिविटी ऑफ haloarines increases towards nucleophilic substitution reactions. Okay, now in next lecture we discuss about electrophilic substitution reactions of haloarines. Okay students, thanks.